Please welcome them with a huge round of applause. किसी संस्था, व्यक्ति या किसी भाषा की अवहेलना करना नहीं है, बल्कि शिक्षा प्रणाली के बदलाव के साथ बदलते युग को दर्शाना है। देखो सोचो समझो तुम ख्वाहिशों की छाव में, खुद को ना भूलो तुम, सपनों का आसमां छूना है तो अपनी राह तराशो तुम। देखो सोचो समझो तुम, देखो सोचो समझो तुम, देखो सोचो समझो तुम। श्रावको ध्यानम स्वान निद्रा तदेव च, अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अर्थात कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, श्वान जैसी निद्रा, संयमित आहार, यही है विद्यार्थी जीवन का सार। शिष्यों, आज का पाठ यही समाप्त होता है। आप जाइए, अपना कार्य पूर्ण कीजिए। जी गुरुजी। First an experience about it when I went to Delhi to meet different delegates from different countries, and we were there to pitch in for to get some pitch for our investment in Indore, and everybody, you won't believe this, they were like, इंदौर है तो सब सही हो जाएगा। यहाँ पे 6 बार से आप लोग स्वच्छता का जो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी का आप अवार्ड जीत रहे हैं, यहाँ में कुछ तो होगा। तो हमें पूरा भरोसा है आपके ऊपर, आप तो इन्वेस्टमेंट करिए, आप तो आगे काम करिए। तो दिस इज द लेवल ऑफ ट्रस्ट दैट वी हैव अर्नड, नॉट इनसाइड इंडिया बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। So I must congratulate everybody sitting here. Apart from being a wonderful parent, you are also a wonderful citizen, and it includes all of us now. And as far as education system goes, education is not only about studies, as we all know. It's about an all-over development of a person, and all these extracurricular activities, be it sports, be it cultural events, be it making friends, be it working in teams, be it in taking up leadership roles, be in accepting who you are. Everything is very important, and I think school administration here and you as a parent and kids all are doing a wonderful job in creating a very wholesome environment for studies, for educational growth, and for all over personality development. My best wishes, and thank you for inviting me here. Thanks a lot. Being hosted, it is great to know that 600 students out of 2,173 students of SICA 54 have enthusiastically participated. Like me, I am sure that parents also look forward to seeing all children's progress in this social context outside the world of books. SICA Trust help these students by taking care of their education. I applaud the trumpet spirit which all of you conducted those challenging times. Balance the strength physically, emotionally, and mentally. We each of us mentally, the resilience showed that we can be warriors at the difficult times, and we were all come out as winners. SICA Education Trust played an active role by providing financial and food package to the people in transit. Fees were waived off of the students who had lost their earning member of the family, and for those who were not unable to continue their wards education. During the lockdown, the legacy of the SICA to pursue and enrich academic and cultural ethics, teachers were empowered with technical know-how and innovative teaching methods in-house, and online workshops and training sessions were conducted. नमस्कार, बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट में, जहां 3 दिवसीय आयोजन चल रहा है। आज पहले दिन सिक्का सीनियर सेकेंडरी स्कूल में
एनुअल फंक्शन का आयोजन हो रहा है और हमारे चीफ गेस्ट हैं CEO स्मार्ट सिटी मिस्टर दिव्यांग सिंह। आइए हम उनसे सीधी बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है इस स्कूल में आकर। बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। और कैसा आपको महसूस हो रहा है स्कूल में आकर, यहाँ की परंपरा कैसा आपको? स्कूल में वापस लौटना हमेशा एक पुरानी मेमोरीज को याद करने जैसा होता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो आज ऑर्गेनाइजेशन हुआ था। इट वॉज वेरी वेल प्लान, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, वेरी वेल ऑर्केस्ट्रेटेड एंड वेरी वेल एक्सिक्यूटेड। तो मैं पूरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टाफ को, बच्चों को, उनके पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही आशा करता हूँ कि उनका भविष्य बहुत बहुत सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट लगभग 4 दशक से ज़्यादा समय से इंदौर में अपनी सेवाएं कर रहा है। इस ट्रस्ट के बारे में आपका कुछ विशेष ट्रस्ट अगर बहुत लंबे समय तक चलता है तो उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है और इतने लंबे समय तक अगर ट्रस्ट चल रहा है तो ये इसी बात को बता रहा है कि कितना मेहनत से इस ट्रस्ट में सब लोगों ने काम किया है और अलग अलग फील्ड्स में किस तरीके से ये ट्रस्ट आगे बढ़ के आ रहा है। मेरी बहुत बहुत बेस्ट विशेष है ट्रस्ट के साथ और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी सिक्का ट्रस्ट ऐसे ही काम करता रहेगा और एजुकेशनल हाइट्स को जुड़ता है। बिहान संवाद के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम हैं इंदौर की शान कहे जाने वाले सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट में, जहां हम बात करेंगे कि यहाँ के चेयरमैन से और जानेंगे कि 5 दशक से ज़्यादा समय से वो शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान किस तरीके से दे रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के चेयरमैन P बाबू जी से बात करेंगे और जानेंगे कि एजुकेशनल ट्रस्ट किस तरीके से उपयोग कर रहा है। बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार आपका हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि 5 दशक का जो समय रहा, इसमें आपके एक्सपीरियंस कैसे रहे और आगे आप इस शहर को क्या देने वाले हैं? 5 दशक नहीं, 4 दशक से मैं जुड़ा हुआ हूँ सिक्का साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन से। 1985 से एज ए सेक्रेटरी आई स्टार्टेड एंड साउथ इंडियन कल्चरल एसोसिएशन is the parent body. From South Indian Cultural Association only, the trust has been formed and the trust is running the school operation. All the cultural activities is being conducted by the association. So here the Sikha Education Trust, we are having 3 schools in different places, Nippania, Scheme 54 and Scheme number 78. And we are also having a college, 10 साल हो गया है कॉलेज स्टार्ट करके, सिक्का कॉलेज, एंड वी आर हैविंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स वी आर टीचिंग, BA, BCom, BBA, BCA, कंप्यूटर साइंस and mass communication. So children have doing very well. They have got first rank 2-3 times and second rank, third rank always also there from the ABB, and we are proud to say that our teaching, the faculties are also very cooperative, and teaching faculty in all the field, they give good moral support to the students. मेरा अगला सवाल ये है कि सोशल कंसर्न के लिए सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट किस तरीके से काम करता है, सोशल वेलफेयर में किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है, रोल इन सोशल वेलफेयर सेक्टर? Social welfare system, you can very well, it was visual during the time of epidemic. We have association side, we are catered to the food packets, we are distributed to the needy ones, and we have reached medicines also to the required people. We have collected money from our own members, and we have done this exercise for continuously 40 days, and our Karthik Shastri, our treasurer trustee, he has taken a lead in making arrangement for the food packets, and with all cooperation of all our members, we have done very good service. And also from the trust side, during the calamity, we our own staff, teachers, they expect, or we have provided job for their better halves.
we have provided service to them, and also as a charity we have waived fees to many of the needy children whose parents, both parents have expired due to this calamity. We don't mind spending lot of spending our money to the needy ones at any time, any calamity. Our noble service we are doing it. Free education we have done. बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बहुत शुभकामनाएं आगे के भविष्य के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे यहाँ के ट्रस्ट के चेयरमैन पी बाबूजी, जिनसे हम सीधी बात कर रहे थे। इस सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट की ट्रस्टी से हम बात करेंगे अभी, और डॉक्टर विजय लक्ष्मी अयंगर से, और जानेंगे कि सोशल वेलफेयर में सिक्का एजुकेशनल ट्रस्ट किस तरीके की भूमिका निभाता है। तो मेरा यही सवाल है आपसे कि सोशल वेलफेयर सेक्टर में सिक्का स्कूल के बच्चे और पूरा एजुकेशनल ट्रस्ट किस तरीके से शहर को अपना योगदान देता है। आजकल के युग में जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक सोशल इंजीनियरिंग जैसा कॉन्सेप्ट आया है। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है कि कैसे हम समाज के खास तबके को अपने से जोड़ सकें। तो सिक्का एजुकेशन ट्रस्ट अपने 4 दशक में उसने अपने समाज को जोड़ा। सर ने बताया कि पेंडेमिक में तो हम लोगों ने बहुत काम किया। हमारे कॉलेज में NSS है, नेशनल सोशल सर्विस स्कीम, जिसमें कि हम लोग ने पास के गांव को गोद लिया है, और बच्चों में हम यही जागृति जगाना चाहते हैं कि कैसे दे हैव टू लुक बियॉन्ड बुक्स, कि कैसे हम लोगों के साथ मिलकर के कैसे समाज को मुख्य धारा से जोड़ करके हम काम कर सकते हैं। हमारा जो ट्रस्ट है वो RTE के लिए भी काम करता है, राइट टू एजुकेशन, जहाँ की 25% जो एडमिशन है वो RTE बच्चों को दिए जाते हैं। समय समय पर जैसे स्वच्छता अभियान के तहत हमारा निपानिया कैंपस को शामिल किया गया था। तो हम लोग ने एक हर से प्रयास किया है कि जब जो भी सोशल कॉल आए उसमें बच्चों को सम्मिलित करें, और इस तरह समाज की मुख्य धारा से अपने एसोसिएशन में जुड़ करके। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे सिक्का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी डॉक्टर विजय लक्ष्मी अयंगर, और उनसे बात कर रहे थे। सिक्का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 4 दशक से ज़्यादा समय से इंदौर शहर में शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतर काम कर रहा है, एक नए आयाम लगातार स्थापित कर रहा है। सहयोगी राहुल के साथ रविशंकर, बिहान संवाद, इंदौर।